हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग। मैं ऑडिबल? आवाज़ आ रही है मेरी? Yes, sir. ओके। सो वेरी फ्यू वी हैव ज्वाइन टुडे, ओनली 4. ओके, दो आई विल कंटिन्यू, नो इशू. So we were discussing about citizenship, right? So let's have a recap what we discussed till now in this class, in the last class. So in the last class, we were discussing about citizenship. Citizenship is under part 2 of the Constitution. This is from Article 5 to 11, and Article 5 to 10. Article 5 to 10 deals with citizenship at the time of commencement of the Constitution. Article 5 to 10 deals with citizenship at the time of commencement of the Constitution, right? And Article 11 empowers Parliament. This word is important, okay? Article 11 empowers Parliament to enact such laws or provisions related to citizenship. And subsequently, Parliament has enacted Citizenship Act 1955. Okay, Citizenship Act 1955. So Article 5 to 10 talks about commencement, means citizenship, who all will be the citizen of India at the time when Constitution was adopted. In the year 1949, 26 November 1949, the Constitution was adopted by the people of India. So, who all are going to be the citizen of India that has been mentioned under Article 5 to 10? So, we have categorically one by one discussed on Article 5, Article 6 to we have discussed, Article 7 also, then Article 8, Article 9, and Article 10. Right? Article 10 also we did discuss. Article 11, it empowers Parliament to enact any law related to any law or provision related to Citizenship Act 1955. Citizenship, and the Parliament enacted Citizenship Act 1955. Parliament enacted Citizenship Act 1955. So this Citizenship Act 1955 gives 5 ways to acquire 5 ways to acquire Indian citizenship and 3 ways to terminate. So 5 ways to acquire Indian citizenship and 3 ways to lose to terminate Indian citizenship is being the provision given in under Citizenship Act 1955, right? So we did discuss these 5 ways also. The first is the first was by birth, also known as just soli, means son of the soil, and the subsequent amendment made in this, that who is going to be the by birth, who is going to be the citizen of India. Okay. Then we discussed about by descent to by descent. Second one, by descent. This is called just sanguine. Just sanguine. It means blood relation. Blood relations. So we did discuss about this also, by descent. Then by registration, we did discussed about by registration. So anyone married to Indian citizens can get Indian citizenship by registering itself, herself or himself. Then we discussed about PIOs and OCIs also. PIOs need to stay for 7 years. OCIs need to stay for 5 years. Then they can apply for applications. They can apply for citizenship. Okay. Then by naturalization. By naturalization. So any foreigners, any foreigners, if they want to get Indian citizenship,
and they have the permanent intentions, or they have the intentions to stay in India permanently, they can acquire Indian citizenship by naturalizations. So they'll have to first stay in India for 6 years. Earlier it was 12 years. Earlier it was 12 years. Okay. So now they have to stay in India for 6 years. The 6 years should be consecutively 6 years. They should not break their period. They should not means 1 month they will stay here, then they will go back again. Say after 6 months they will come. No, they'll have to continuously stay in India, and that is because it is being assumed that they need to learn the culture of India. That's why after that only they'll be provided the citizenship. So by naturalizations, we also discussed about everything, and by incorporation of territory. The last one was by incorporation of territory, right? So any territory, if India acquires, the population of that territory automatically becomes Indian citizen. Like it happened in Sikkim in 1975 when Sikkim was acquired first through 35th Constitutional Amendment Act. Sikkim was acquired into Union of India, and through 36th Constitutional Amendment Act, Sikkim was given the statehood under Article 2. Okay. So entire population of that area, that territory, Sikkim, automatically became Indian population. Automatically became Indian population. Then we did discuss 3 ways to lose Indian citizenship. First is renunciation. Anyone voluntarily giving up the citizenship, that is renunciation. And termination. If someone acquires the citizenship of any other nation, any other country, his or her Indian citizenship can be terminated automatically. This happens automatically. And third is deprivation. So if anyone is found involved in anti-national activities, they can be deprived of citizenship. So there are two reasons mentioned in Citizenship Act, that anyone disclosing false fraud information or submitting fraud documents while acquiring citizenship through naturalizations or registration process, if they are providing any sort of wrong information, they will be their citizenship will be taken off. Their citizenship, his or her citizenship, will be taken off. That is deprived. They will be deprived of. And if someone acquired Indian citizenship, or if someone already Indian citizens, and if they join any foreign aliens or any enemy aliens, if they join any enemy aliens, or if they help in any sort to enemy aliens in times of war, so their citizenship, his or her citizenship, will be taken off by the government or by the authorized person. That is, they will be deprived of their citizenship, his or her citizenship. So these are the 3 ways to terminate Indian citizenship. This Citizenship Act has been amended several times, but the last amendment, this was made in the year 2019, and for which there was huge hue and cry everywhere in the country. Shaheen Bagh protest, you must be remembering it. Protest everywhere, people were protesting against this Citizenship Amendment Act. And this Citizenship Amendment Act, what they did, the major issue for protest was this was providing, this citizenship was providing the citizenship to people of 5 communities: Hindus, Jains, Sikhs, Buddhists, and Parsis, who are from Bangladesh, Pakistan, and Afghanistan. So from this country, they are being provided Indian citizenship. Though this provision of getting Indian citizenship has nowhere written in the Amendment Act. This provision of giving citizenship to these 5 community people has nowhere is written in the Amendment Act. This is being written in the Statement of Record. Statement of Record. स्टेटमेंट ऑफ रिकॉर्ड. स्टेटमेंट ऑफ रिकॉर्ड होता यह है कि अगर कोई गवर्नमेंट मतलब पार्लियामेंट अगर कोई बिल पास करती है या फिर कोई एक्ट बनाती है, तो उस एक्ट का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है,
गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव जो है, एग्जीक्यूटिव बॉडी उस एक्ट को क्यों बनाई, what were the reason, what were the objective, what they want to achieve through this, through that act, through that bill or through that act, what they want to achieve. तो गवर्नमेंट वो स्टेटमेंट ऑफ रिकॉर्ड एक इश्यू करती है कि आवर एम इज दिस, एंड थ्रू दिस अमेंडमेंट एक्ट और थ्रू दिस लॉ वी आर गोइंग टू अचीव दिस थिंग्स. सो उसी स्टेटमेंट ऑफ अकॉर्ड में, स्टेटमेंट ऑफ रिकॉर्ड में 5 कम्युनिटीज को ये एक्सप्लेन किया गया है कि 5 कम्युनिटीज के लोगों को इंडियन सिटीजनशिप दिया जाएगा, जो हिंदूज, जैन, सिख्स, बुद्धिस्ट एंड पारसीज हैं, और जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया से हैं, सॉरी अफगानिस्तान से हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हैं, ये 3 कंट्री से आए हुए हिंदूज, जैन्स, सिख्स, बुद्धिस्ट एंड पारसीज, इनको इंडियन सिटीजनशिप दिया जाएगा. ठीक है. और इनको पहले प्रोविजंस था 11 इयर्स, 11 इयर्स इंडिया में रहना पड़ेगा तभी उनको सिटीजनशिप दिया जाएगा. मींस दे हैव टू completely stay in India for 11 years consecutively. This 11 years को reduce करके अभी 6 years कर दिया गया है. It means they have to stay in India now for 6 years consecutively, and if they are for 6 years in India, they can apply for Indian citizenship. They can apply for Indian citizenship and they'll get Indian citizenship. Okay, so this 11 year has been reduced to 6 years through this Citizenship Amendment Act 2019. And these migrants, see, anyone illegally coming into Indian territory, they need to be facing some prosecutions, and the prosecution happens under Passport Act और Foreigners Act. अगर कोई इलीगल माइग्रेंट जो है बिना पासपोर्ट का, बिना कोई डॉक्यूमेंट का इंडिया आता है, उसमें फॉरेनर्स एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई होती है, उसको पनिश किया जाता है, और या तो उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है, दूसरे जिस कंट्री से आया हो उसी कंट्री में डिपोर्ट कर दिया जाता है. अगर कोई लीगल पासपोर्ट से आया है, वीजा से आया है, तो वीजा का एक ड्यूरेशन होता है, वीजा का एक ड्यूरेशन होता है. अगर ये ड्यूरेशन एक्सपायर कर जाता है, वीजा का अगर ड्यूरेशन एक्सपायर कर जाता है, and still that person is in India, Indian territory, it means his or her stay is being considered illegal. His or her stay is being considered illegal. और ऐसे पर्सन्स को फॉरेनर्स एक्ट के तहत डील किया जाता है, सॉरी पासपोर्ट एक्ट के तहत. पासपोर्ट एक्ट ऐसे लोगों के ऊपर पासपोर्ट एक्ट के जो सेक्शंस हैं वो लगाए जाते हैं, वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं और उनको पनिश किए जाते हैं. ठीक है. तो ये जो अमेंडमेंट हुआ, ये दोनों अमेंडमेंट, इसमें कहा गया कि दिस माइग्रेंट्स वर हिंदूज, जैन, सिख्स, बुद्धिस्ट एंड पारसीज, ये माइग्रेंट्स जो हैं, ये दिस माइग्रेंट्स आर एग्जेम्प्टेड, इनको पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा. दिस माइग्रेंट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पासपोर्ट एक्ट and Foreigners Act. Even if they are in India illegally, भाई उनको पनिश मत करो, उनको पनिश नहीं करेंगे. Okay, so these 2 provisions had been amended, and statement of record में गवर्नमेंट ने बोला कि 5 कम्युनिटीज को हम सिटीजनशिप दे रहे हैं. तो ह्यू एंड क्रा हुआ कि मुस्लिम्स को क्यों नहीं देंगे हम, भाई मुस्लिम्स नाम क्यों नहीं है, मुस्लिम्स क्यों नहीं है. Everyone was asking that Muslims are the most persecuted person or religiously persecuted like Rohingya Muslims. तो रोहिंग्या मुस्लिम जो म्यांमार में है उसको मोस्ट प्रोसिक्यूटेड बोलते हैं, मैंने स्टोरी भी बताई थी. तो ये सभी लोगों ने इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना शुरू किया, राइट. तो अभी इशू ये है कि गवर्नमेंट प्रोटेस्ट जितना भी हो जाए, गवर्नमेंट जो है उसको इम्प्लीमेंट, अभी 5 स्टेट में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट है. 5 स्टेट्स में रिसेंटली ने गवर्नमेंट एनआरसी, सॉरी सिटीजनशिप एक्ट को जो अमेंडमेंट की थी गवर्नमेंट ने, whatever the changes they have brought, they have already implemented those changes in the 5 states of India. We'll discuss this. Then आसाम में क्या है, in the year 1951 में आसाम में एनआरसी कंडक्ट किया गया था. एनआरसी है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन. ओके,
नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। ये फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में अगर कहीं कंसिडर किया गया था और कंडक्ट किया गया था, दैट वाज इन द ईयर 1951 इन आसाम, एक्सक्लूसिवली फॉर आसाम, एंड दिस वाज वैलिड एक्सक्लूसिवली फॉर आसाम ओनली, एक्सक्लूसिवली फॉर आसाम ये वैलिड था, आसाम में, ठीक है। तो ये अभी एक चीज और जान लो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन और जो सेंसस होता है इंडिया का सेंसस। सेंसस में हम एवरीथिंग, वी काउंट एवरीथिंग, वी काउंट एवरीथिंग, एवरीथिंग इन द प्रोसेस, राइट, उनका एज, जेंडर, फैमिली मेंबर, their education, their economical background, their social background, everything we count in the census. The census counts everything. नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में हम बस ये आइडेंटिफाई करते हैं कि दैट पर्सन इज इंडियन और नॉट, और दैट पर्सन इज होल्डिंग इंडियन डॉक्यूमेंट और एनी इंडियन आइडेंटिटी और नॉट। तो हम सिर्फ वही काउंट करते हैं, नाम लेते हैं, नाम, उस पर्सन का नाम हम रजिस्टर करते हैं और उसके पास क्या डॉक्यूमेंट है जो इंडिया होने का प्रमाण देता है, इंडिया होने का विटनेस है उसके पास। बस हम ये चेक करते हैं इंडियन रजिस्टर ऑफ, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन में, ठीक है। तो 1951 में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स ऐसा बनाया गया था, ठीक है, ये एक कहानी है। 1971 में जब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ था 1971 में, पहले क्या था, अभी जो बांग्लादेश था वो ईस्ट पाकिस्तान था, 1971 से पहले ईस्ट पाकिस्तान था, और पाकिस्तान और बीच में इंडिया था, एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान। तो अभी का बांग्लादेश जो था वो ईस्ट पाकिस्तान था और बीच में इंडिया का टेरिटरी था। तो इन द ईयर 1975, so as 1971, the war kind of situation arose, and India also helped Bangladesh fighting war with that Pakistanis, they were the Rajakars। हम उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, रजाकार्स जो थे, जब हम बांग्लादेश को डिस्कस करेंगे हम विल डिस्कस अबाउट दैट आल्सो। सो इन द ईयर 1971, तो लार्ज स्केल जब बांग्लादेश आजाद हुआ था तो बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है माइग्रेशन हुआ था इंडिया में, लार्ज स्केल पीपल माइग्रेटेड टू इंडिया एंड दे सेटल इन द नियर बाय स्टेट्स, मीन्स जो बांग्लादेश के पास जो स्टेट्स थे, लाइक आसाम, बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सब एरियाज में सेटल हो गए, बहुत लार्ज स्केल माइग्रेशन हो तो इन सब एरिया में सेटल हो गए। दूसरी बात ये भी हुआ कि 1971 में बहुत सारे रिफ्यूजीज को इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इंडिया में स्टे के लिए बताया था, मतलब उनको परमिशन दिया था कि यू कैन स्टे इन इंडिया, एंड द गवर्नमेंट हैज provided land to make them stay there. So in various states, like in Maharashtra also, like in Bihar also, like UP also, you will get refugee camps, अभी भी हैं रिफ्यूजी कैंप्स हैं, ठीक है, जहां पर बांग्लादेशी माइग्रेंट्स को जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने अलाउ की थी उनको, वो अभी भी बंगाली रिफ्यूजी कैंप बोलते हैं उनको, अभी भी वो वहीं पर रहते हैं, ठीक है। तो दिस रिफ्यूजी कैंप स्टिल एग्जिस्ट्स, ओके, बट डिस्पाइट दिस रिफ्यूजी कैंप, large scale illegal migration happened, they came to India, settle in different states, ठीक है। अब क्या है, अगर माइग्रेशन होती है, अगर ज्यादा लोग आ जाते हैं तो जो रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, अभी रिसोर्सेज लिमिटेड है। रिसोर्सेज का मतलब है कि जो भी चीजें अवेलेबल है, खाने का जो अनाज है, उसके बाद इवन जॉब्स, सर्विसेज, जॉब जो है वो भी लिमिटेड है, और ज्यादा अमाउंट में अगर लोग आ जाते हैं तो भाई उनको जिंदा रहने के लिए तो काम करना जरूरी है ना, उनको खाने के लिए पैसे चाहिए, और पैसे ऐसे आएंगे नहीं, पैसे कमाने पड़ेंगे, पैसे कमाने के लिए उनको जॉब चाहिए। तो जॉब में क्या होगा, जो रिसोर्सेज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, बहुत सारे हेड हो जाएंगे और बहुत सारे रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हो गए, बहुत सारे सोर्सेज आ गए, रिसोर्सेज के लिए बहुत सारे, और रिसोर्स ये होने लगा, कंस्ट्रक्ट होने लगा, मतलब बहुत कम होने लगा। तो वहाँ के जो
स्टूडेंट थे, आसाम के जो स्टूडेंट थे, मतलब इन द ईयर 1979 itself, जो आसाम के स्टूडेंट थे, उसका बोलते हैं ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन, ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन, तो आसू के नाम से इसको जानते हैं, आसू। इन्होंने ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन ने प्रोटेस्ट किया, they protested and they started movement, and that movement lasted for 6 years. So 6 years movement चला, started in the year 1979 और 1985 तक चला ये। उनका डिमांड था कि भाई ये जो 1951 में जो सेंसस किए गए हैं, 1951 में सेंसस जो किए गए हैं, एनआरसी जो किया गया है, सॉरी सेंसस नहीं, एनआरसी, 1951 में जो एनआरसी किया गया है, और इस समय जितने भी लोगों को बताया गया है कि दे आर इंडियंस, एंड इसके बाद जो लोग इंडिया में आए हैं, इसके बाद जो भी लोग इंडिया में आए हैं, दे ऑल आर इलीगल माइग्रेंट्स एंड दे नीड टू बी डिपोर्टेड बैक टू देयर कंट्री। तो उनका वही डिमांड था कि जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं, सभी इलीगल माइग्रेंट्स को डिपोर्ट करो। डिपोर्ट, their prime demand was to deport all illegal migrants, and the base was 1951 NRC। उनका डिमांड वही था कि 1951 एनआरसी में जितने लोग रजिस्टर्ड हैं, दे विल स्टे इन इंडिया, और जो नहीं है, इसका मतलब कि वो जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, एंड दे नीड टू बी डिपोर्टेड बैक टू देयर कंट्रीज। बट आसाम में थोड़ा सिनेरियो अलग है। ये सिनेरियो जो है ये आसाम का है, राइट। जब मूवमेंट इतना हुआ, मूवमेंट चला, और ये मूवमेंट में क्या होता था कि जितने भी लोग मतलब बाहरी थे, जो आसामीज नहीं थे, और जो आसाम में रहते थे, किसी कारण काम करते थे, जॉब करते थे, या फिर गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, पब्लिक जॉब, वट एवर, या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, लेबर में काम करते थे वो, तो जितने लोग बाहर, आसाम के बाहर थे, तो ये ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन के जो कार्यकर्ता लोग थे या फिर जो वॉलंटियर्स थे, दे स्टार्टेड टॉर्चरिंग देम, दे killed, means many of means they thought migrants are there, they killed many of the persons who were the migrants in the state itself, बहुत सारे migrants को मार दिया गया, ठीक है। और इवन ट्रेनों में भी, जो अगर ट्रेन में भी वो लोग जाते थे, तो ट्रेन में से भी उतार करके उनको मारा गया है। सो ये उस समय की कहानी है, हालांकि हमें उस कहानी में नहीं देखनी है, हमें जो लीगल मैटर हुई उसके बारे में देखना है। तो ये 6 इयर्स का जो मूवमेंट हुआ, 6 इयर्स का मूवमेंट हुआ, दिस मूवमेंट So, 6 इयर्स का जो मूवमेंट हुआ, उनका प्राइम डिमांड जो था, इलीगल माइग्रेंट्स को डिपोर्ट करो, वी डोंट वांट इलीगल माइग्रेंट्स टू इंडिया। एंड फाइनली इन द 1985 में निगोशिएशंस करके ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन के साथ, अगर ब्लड सेट नहीं हो, या फिर अभी ज़्यादातर स्ट्राइक्स नहीं हो, स्टेट में प्रॉब्लम ना हो, तो जो ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन के जो ये थे रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन, इन्होंने निगोशिएशंस करके एक अकॉर्ड साइन किया, एक अकॉर्ड साइन किया इन द ईयर 1985 में, जिसको हम आसाम अकॉर्ड के नाम से जानते हैं। एक डील साइन की जिसको हम आसाम अकॉर्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि ओके, वी विल डिपोर्ट ऑल इलीगल माइग्रेंट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मानना पड़ा इन द ईयर 1985 राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, तो उस समय मानना पड़ा, राजीव गांधी के लीडर में आसाम अकॉर्ड साइन हुआ था, तो उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला कि ठीक है, जो जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हुए हैं, वो मार्च 25 1971 के बाद, आफ्टर
आफ्टर मार्च 25 1971 के बाद जितने भी लोग आए हैं इंडिया में या फिर आसाम में, उस एरिया में जितने भी लोग आए हैं, दे विल बी डिक्लेयर्ड इलीगल माइग्रेंट्स and ultimately they will be deported back. They will be deported back. This was, ये साइन हुआ आसाम एकॉर्ड में, ठीक है, ये प्रोविजन आसाम एकॉर्ड का है। इन द ईयर 1985 में आसाम एकॉर्ड जो साइन हुआ, उसमें कट ऑफ डेट जो दिया गया वो मार्च 25 1971 दिया गया, मार्च 25 1971। बट इशू ये है कि ये जो मार्च 25 1971 जो दिया गया, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया, क्योंकि हमारे जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 5, अगर आपके पास बेयर एक्ट होगा तो यू कैन रीड अपॉन आर्टिकल 5 जो बोलता है, कट ऑफ डेट जो देता है, आर्टिकल 5 में जो कट ऑफ डेट है कि इस डेट के बाद जितने भी लोग आए हैं दे आर इलीगल माइग्रेंट्स, आर्टिकल 5 भी एक कट ऑफ देता है। तो आर्टिकल 5 का कट ऑफ डेट जो है वो जुलाई 1949 है, ठीक है, जुलाई 1949 है। तो आर्टिकल 5 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट सेज दैट हुएवर केम टू इंडिया आफ्टर जुलाई 1949, after July, means they will be given citizenship itself, they will be given citizenship, but the cut off date was decided कि this should be the cut off date, और उसके बाद जो आते हैं they need to get Indian citizenship, they need to acquire Indian citizenship, ठीक है, through the process. Article 5 says like this, but यहाँ पर कट ऑफ डेट जो है, कट ऑफ डेट जो है 1971 25 मार्च 1971 किया गया। तो ये थोड़ा कंट्रोवर्सी हो गया, ये कंट्रोवर्सी हो गया। तो इस कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए, इस कंट्रोवर्सी को मिटाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सिटीजनशिप एक्ट है, सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट की। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अमेंडमेंट लाया, और उस अमेंडमेंट को, इस डेट को चेंज करके अभी जो है डेट जो है वो मार्च 25 1971 कर दिया गया, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एडेड सेक्शन 6A, ये इंपॉर्टेंट है और इस कंट्रोवर्सी जो है इसी के लिए है, सेक्शन 6A इन द सिटीजनशिप एक्ट। तो ये जो प्रोविजंस जो था, जो कंट्रोवर्सी हो रहे थे कट ऑफ डेट के लिए, उस डेट को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेक्शन 6A एडेड सेक्शन 6A इनटू द सिटीजनशिप एक्ट 1955। सिटीजनशिप एक्ट में सेक्शन 6A ऐड किया गया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। समझ में आया? कोई क्वेश्चंस? एनीवन, एनी क्वेश्चन? समझ में आया क्या किसी को? दीपांकर, एनी क्वेश्चन? अभी तक समझ में आया क्या मैंने क्या कहा? डिड यू गेट द पॉइंट्स? हाँ सर। सो एनीवन? दीक्षा? Okay. So this section 6A was added into the Citizenship Amendment Act. और अभी जो कंट्रोवर्सी है ना, ये सेक्शन 6A के लिए ही है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं सेक्शन 6A क्या है। सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट, ठीक है। सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट, ये इन द ईयर 1985 में ही ऐड किया गया था, एंड दिस वाज एप्लीकेबल ओनली टू आसाम। ये सेक्शन जो है सिटीजनशिप एक्ट में ऐड किया गया, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में ऐड किया गया इसको, लेकिन दिस वाज ओनली एप्लीकेबल टू आसाम।
ठीक है, ये कुछ प्रोविजंस रिलेट करता है कि हु विल बी कंसिडर्ड the citizen of that state, or that citizen of India residing in that state, who will be considered as citizens. तो इसमें एक डेट लेट डाउन किया गया दैट जनवरी 1 1966 के पहले, बिफोर जनवरी 1966 जितने भी लोग आसाम में इंटर किए हैं, जितने भी लोग आसाम में इंटर किए हैं, जितने भी लोग आसाम में इंटर किए हैं, और उसको उन्होंने एक तरह से मेंशन किया कि जितने भी PIOs, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स, ऐसा उन्होंने एक बताया कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जितने भी हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जितने भी हैं और जो आसाम में इंटर किए हैं बिफोर जनवरी 1966, 1 जनवरी 1966, they have and they have been residing in Assam as an ordinary citizens. Residing in Assam as an ordinary citizen, they will be deemed to Indian citizens. मैंने इसके पहले भी कहा था कि who all will be deemed to Indian citizens, तो इनको Indian citizens, deemed Indian citizens, they will be deemed as Indian citizens. समझ में आया? तो जो ये सेक्शंस एक ऐसे पॉइंट ऐड किए गए इसमें कि बता रहा है कि जितने भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और जो आसाम में इंटर हुए हैं बिफोर जनवरी 1 1966 and they are already residing in India as a temporary citizens or as an ordinary citizens, they will be deemed as Indian citizens. And those who came after January 1966, those who came after 1st January 1966, तो यहां पर एक ऐसा डेट मार दिया कि 1 जनवरी, जितने भी लोग 1 जनवरी 1966 के बाद आए, और ये जो आसाम एकॉर्ड में जो डेट सेट हुआ था मार्च 25, 1971, इस बीच में जितने भी लोग आए आफ्टर जनवरी 1 1966 टिल मार्च 25, 1971, जितने भी लोग इंडिया में आए और दे आर रिसाइडिंग एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन्स, they are residing as an ordinary citizen, they will have to stay for 10 years. 10 साल अगर उनको यहां रहना पड़ेगा, ठीक है, 10 जिस दिन से डिटेक्ट हो जाएगा कि दे आर फॉरेनर्स, ठीक है, फ्रॉम द डेट डिटेक्शन, तो जिस दिन डिटेक्ट हो जाएगा कि मतलब उनको उनके बारे में पता चलेगा कि ओके दिस इज नॉट इंडियन, दिस पर्सन और दिस फैमिली इज नॉट इंडियन, तो उसको और 10 साल जो है एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन्स इंडिया में रहना पड़ेगा, ठीक है, एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन्स और 10 साल इंडिया में रहना पड़ेगा, एंड देन दे विल बी, मतलब ये इनको फॉरेनर ही कंसिडर किया जाएगा अभी तक 10 इयर्स तक जो है इनको फॉरेनर्स कंसिडर किया जाएगा, and after that they will be given Indian citizenship. After that they will be given Indian citizenship, but during this period, ये जो पीरियड है, ये जो 10 years है, they will not have voting rights, वो वोट नहीं करेंगे, इनको वोटिंग राइट्स नहीं होगा। अगर देखो वोटिंग राइट्स नहीं होगा इसका मतलब उनके पास वोटर कार्ड नहीं होगा, कोई आइडेंटिटी नहीं होगी, कोई आइडेंटिटी नहीं होगी तो उनको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा है, so no voting rights, no government jobs, ठीक है, इनको वोटिंग राइट्स
10 इयर्स पीरियड के लिए वोटिंग राइट्स नहीं है। जब वोटिंग राइट्स नहीं है तो गवर्नमेंट जॉब नहीं है, नो गवर्नमेंट जॉब्स, बट दे विल बी प्रोवाइडेड इंडियन पासपोर्ट। इनको इंडियन पासपोर्ट दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकलिटी है, समझो थोड़ा सा। ओके, सो इनको इंडियन पासपोर्ट दिया जाएगा सिर्फ। ओके, यू विल बी गिवन इंडियन पासपोर्ट। ओके, तो इशू ये है कि जितने भी लोग आफ्टर जनवरी 1 1966 इंडिया में आए हैं या फिर आसाम में रह रहे हैं टिल मार्च 25 1971, ये जो डेट है ये आसाम एकॉर्ड में सेट किया गया है। ये डेट टिल मार्च 25 1971 दे आर, इफ दे आर रिसाइडिंग इन इंडिया and they are residing as an ordinary citizens, they'll have to reside for 10 years from the date of detections. Till then they will be considered as Indians, as foreigners. They will not have voting rights and they will not get any government jobs, but they will be provided Indian passport उनको दिया जाएगा। तो उनके पास राइट टू वोट नहीं है, इंडियन पासपोर्ट उनको दिया गया है। अब आता है दूसरे प्लेयर का, दूसरा हीरो आता है कहानी में। पहला हीरो था आसू, ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन, ये पहला हीरो था। अभी दूसरा हीरो आता है आसाम सम्मिलिता महासंघ। ये एक केस है, ये सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था। ओके, इन द ईयर 2014 सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था और इस केस में ये इशू था सुप्रीम कोर्ट में। ओके, और इस केस में जो 1986 में अमेंड किया गया था सिटीजनशिप एक्ट अमेंड करके जो सेक्शन 6A ऐड किया गया था सिटीजनशिप एक्ट। ओके, सिटीजनशिप एक्ट में सेक्शन 6A जो ऐड किया गया था, इसको यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज किया गया। और ये चैलेंज किया गया इन द ईयर 2014। ठीक है, 2014 में ये 1986 में जो भी चेंजेस लाए गए थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू और सेक्शन 6 से ऐड किया गया था, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और उस केस का नाम था आसाम सम्मिलिता महासंघ। तो इसमें सेक्शन 6A में बोला गया था कि कट ऑफ डेट जो है वो 1971 होना चाहिए, और ये आसाम सम्मिलिता महासंघ बोलता है कि कट ऑफ डेट 1971 ना होकर के 1951 होना चाहिए। और ये 1951 जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ और एनआरसी में भी है। एनआरसी भी इस समय कंडक्ट हुआ था। तो एनआरसी कंडक्ट होने के बाद से, न कि इलीगल माइग्रेंट कुछ आगे वहां रह गए, 1971 के बाद से नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर था। ठीक है, इनका आसाम सम्मिलित महासंघ का मैटर, उनका इशू ये है कि 1951 जो है कट ऑफ डेट होनी चाहिए, कि इसके पहले भी जो लोग थे वो भाई इंडियन सिटीजन हैं, और इसके बाद जो आए दे आर इलीगल माइग्रेंट्स। और ये जो 1986 में सेक्शन 6 से ऐड किया गया था, बोल रहा है कि 1971 तक रहने देते हैं। 1971 के पहले जो आए दे आर इंडियंस, दे विल बी प्रोवाइडेड इंडियन सिटीजनशिप, और उसके बाद जो आए दे आर इलीगल माइग्रेंट्स। तो कोर्ट क्या किया, कोर्ट रेफर्ड दिस इश्यू टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। कोर्ट जो है इस इश्यू को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भेज दिया। अभी कोर्ट ज्यादा डिसाइड नहीं कर सकता था, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भेजा, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है सेक्शन 6A को बहुत अच्छे तरीके से रिव्यू किया। ठीक है,
एंड रिव्यू करने के बाद बोला कि सेक्शन 6A इज वैलिड. सुप्रीम कोर्ट in the year 2014 itself said that section 6A is valid despite it providing different cutoff date. ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1949 का डेट लिखा हुआ है और 1971 का जो है ये प्रोवाइड करता है असम एकॉर्ड सेक्शन 6 है. तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व एंड सेड दैट दिस 1971 date is valid and this 1941 despite having this date in the constitution, this 1971 date is valid. तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ ये ऑब्जर्व किया कि ये जो 1949 में हमारे जो आर्टिकल 5 हैं, आर्टिकल मैंने कहा था आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक जो है ये एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही इंप्लीमेंट होगा, एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. और अभी हम हैं 2014 में, तो 2014 में ये प्रोविजंस इंप्लीमेंट ना होकर के ये जो नया लाया गया है सेक्शन 71 का डेट जो है कट ऑफ, ये इंप्लीमेंट होगा, ये ज्यादा वैलिड होगा. तो ये 5 जज बेंच था सुप्रीम कोर्ट में, 5 जज का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था, 5 जज का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था. और इन्होंने जो सेक्शन 6A है उसको वैलिड बनाया. सेक्शन 6A इज वैलिड, सेक्शन 6A को वैलिड माना. और इसी सेक्शन 6A, ये जो सेक्शन 6A है ना, इसी सेक्शन 6A में एक प्रोविजंस है जो है एनआरसी कंडक्ट करने का. एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन कंडक्ट करने का इसी सेक्शन 6A में लिखा हुआ था कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन शैल बी कंडक्टेड, और 2013 में ही 2013 में ही इसको गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि एनआरसी शैल बी कंडक्टेड इन द स्टेट ऑफ आसाम. सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था वो, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि एनआरसी शैल बी कंडक्टेड इन द स्टेट ऑफ आसाम. ठीक है, तो यहां तक समझ में आया? ये थोड़ी टेक्निकली ज्यादा ही टेक्निकल हो गया ये. डिड यू गेट द पॉइंट्स? यहां तक समझ में आया क्या? एवरीवन प्लीज रिप्लाई. वीरेंद्र, दयानिधि, चिरायु, दीपांकर, एवरीवन अभी तक समझ में आया? दीक्षा, दुर्गम, श्रीतिजा इज ऑल्सो देयर. श्रीतिजा, समझ में आई? समझ में आया ना ये सब बात? ओके. Yes, sir, but there is a doubt, sir. हाँ, यस यस, बोलो. सर वो 1971 को कौन सा बेसिस पे वो वैलिड बनाए rather than 1941? अरे 1971 में एक सेंसस हुआ था ना, 1971 में एक सेंसस हुआ था, उसी सेंसस को माना गया, वो उन लोगों ने उसी सेंसस को माना है. और हमारे अभी भी जितने प्रोविजंस हैं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिक्लेयर हुए हैं ना, हमारे अभी पार्लियामेंट में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो 1971 के सेंसस पे ही हैं, 1971 के सेंसस पे ही है. दूसरी बात, 1971 में बांग्लादेश इंडिपेंडेंट भी हुआ था. 71, 72 में, 71 में ही बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ था. विजय दिवस मनाते हैं ना, नहीं, कौन सा दिवस मनाते हैं? बांग्लादेश इंडिपेंडेंट डे को कौन सा दिवस के नाम से मनाते हैं? ओके, गुड, एवरीवन समझ में आ गया सभी को? तो इस सेक्शन 6A जो है ये एनआरसी के प्रोविजंस को बताता है कि स्टेट में एनआरसी कंडक्ट किया जाएगा.
Section 6A also says that persons will be identified, उनका आइडेंटिफाई किया जाएगा एज एन इलीगल माइग्रेंट। इलीगल माइग्रेंट आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना, तो और भाई इलीगल माइग्रेंट आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसके बाद उनको करेंगे क्या, उनको क्या करेंगे, कंटेनर में भर के ऑस्ट्रेलिया भेज देंगे, अमेरिका भेज देंगे, या फिर नया एक आइलैंड खरीद कर दे देंगे, कुछ तो करेंगे। तो सेक्शन 6A बोलता है कि इलीगल माइग्रेंट्स को डिटेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो इसके लिए एक ट्राइब्यूनल बनाया गया है। तो इलीगल माइग्रेंट डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल्स, determination by tribunals एक्ट, जिसको हम IMDT एक्ट बोलते हैं, ठीक है, IMDT एक्ट जिसको बोलते हैं। इलीगल माइग्रेंट डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल्स एक्ट, ये बनाया गया इन द ईयर 1983 में, 1983 में ही बनाया गया था इसको, कि हम भाई इसी बेसिस पे इलीगल माइग्रेंट्स को डिटरमाइन करेंगे और इसमें जो भी प्रोविजंस हैं उसी के प्रोविजंस के थ्रू इलीगल माइग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। और ये IMDT एक्ट जो है, IMDT एक्ट, दिस वाज ओनली एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ आसाम। ये ओनली एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ आसाम। और जो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज में जो माइग्रेशन होती थी, या फिर रेस्ट ऑफ द कंट्रीज में जो आते थे, तो उनके अगेंस्ट में जो है फॉरेनर्स एक्ट लगता था, फॉरेनर्स एक्ट। और ये फॉरेनर्स एक्ट जो बनाया गया वो 1946 में बनाया गया, तो उनके अगेंस्ट में फॉरेनर्स एक्ट लगता है, रेस्ट ऑफ द कंट्री। रेस्ट ऑफ द कंट्री, समझ में आया? तो ये सेक्शन 6A, इट सेज दैट इलीगल माइग्रेंट्स नीड टू बी आइडेंटिफाइड। सेक्शन 6A says illegal migrants need to be identified, and that identifications will be made through this illegal migrant determination by tribunals act 1983, IMDT एक्ट 1983। और ये IMDT एक्ट जो है ओनली एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ आसाम, और रेस्ट ऑफ द कंट्री में जो आइडेंटिफिकेशन होगा वो फॉरेनर्स एक्ट के थ्रू होगा, ठीक है। अभी देखो थोड़ा कंट्रोवर्सी अराइज हो गया, दो चीजें आ गई यहाँ पर भाई। अभी आसाम का सिनेरियो अलग हो गया, इलीगल माइग्रेंट्स IMDT एक्ट आसाम में लगता है, रेस्ट ऑफ इंडिया में फॉरेनर्स एक्ट लगता है। और जो इलीगल माइग्रेंट्स के जो कुछ प्रोविजंस थे ये बहुत ड्रास्टिक थे, IMDT एक्ट के जो कुछ प्रोविजंस थे, IMDT एक्ट के कुछ प्रोविजंस जो थे, दे वर वेरी डिफिकल्ट, एंड इट वाज डिफिकल्ट इन द सेंस कि अगर आइडेंटिफाई कर भी लेना तो द पर्संस विल नॉट बी डिपोर्टेड। डिपोर्टेशन करना जो है वो डिफिकल्ट था, डिपोर्टेशन जो था दैट वाज डिफिकल्ट, डिपोर्टेशन वाज डिफिकल्ट। तो इस एक्ट में कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जिसके कारण डिपोर्टेशन डिफिकल्ट हो जा रहा था। तो एक लीडर उठकर आए जिसका नाम था, अच्छा अभी अभी आसाम का चीफ मिनिस्टर कौन है? हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम? रिप्लाई। अरे बोलो, स्लीपिंग। मेरी आवाज आ रही है सभी तक? बोलो ना, आसाम के चीफ मिनिस्टर कौन है? ये इजी क्वेश्चन थे यार। आसाम के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो सर्बानंद सोनोवाल।
सर अभी अभी तो वो नया वाला हेमंत विश्व शर्मा कुछ ऐसा कुछ नाम है, हाँ तो सर्बानंद ही मतलब है। पूरी तरह से याद नहीं। इसके पहले भी सर्बानंद सोनोवाल ही थे, हाँ सोनोवाल थे। और आसाम में एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट जो है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है, रिवराइन आइलैंड है, फ्रेश वाटर आइलैंड है आसाम में। पता है क्या किसी को? वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, बिगेस्ट फ्रेश वाटर या आइलैंड, मजूली, द नेम इज मजुली। मजूली इन ब्रह्मपुत्र रिवर, या हाँ यस, मजूरी आइलैंड। और ये जो सर्बानंद सोनोवाल है ना, चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम राइट नाउ, ये इसी मजूली आइलैंड कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनकी। So he is being elected from this constituency itself, Majuli Island. Okay, and this person in the year 2005, 2005 में सर्बानंद सोनोवाल ने इस IMDT एक्ट के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में गए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने चैलेंज किया, उसके कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड होने का चैलेंज किया। एंड द सुप्रीम कोर्ट इन द ईयर 2005 declared IMDT Act illegal. Declared IMDT Act illegal and unconstitutional. In the year 2005 में ही, ठीक है, बिकॉज बहुत सारे प्रोविजंस जो थे वो कंट्रोवर्शियल थे उसमें। तो सुप्रीम कोर्ट ने IMDT एक्ट को, पूरे एक्ट को ही जो है इलीगल डिक्लेयर कर दिया। The entire act is illegal in the year 2005. तो अभी IMDT एक्ट जो था, ये दिस वाज ओनली एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ आसाम। अभी ये भी नहीं रहा, अंतिम संस्कार हो गया उसका। तो भाई अभी देखभाल कौन करेगा उसका, आसाम का? तो फॉरेनर्स एक्ट जो 1946 में बना था, यही जो है अभी आसाम में ये आसाम में एप्लीकेबल हो गया। और इसी फॉरेनर्स एक्ट के तहत जो है आसाम के लिए एक सेपरेट ट्रिब्यूनल्स बनाया गया। आसाम के लिए सेपरेट ट्रिब्यूनल्स बनाया गया, उसका नाम दिया गया फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स फॉर आसाम ऑर्डर 2006। ठीक है, तो फॉरेनर्स एक्ट के अंदर में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स बनाया गया इन द ईयर 2006। बट फाइनली इन द ईयर 2007, इस फॉरेनर्स एक्ट को भी हटा दिया गया। मतलब फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स एक्ट, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल जो आसाम के लिए स्पेसिफिकली बना था, और आसाम के लिए जो बना था, दिस वाज struck down again in the year 2007. This was struck down कर दिया गया। ठीक है, तो अभी जो है ये इंटायर फॉरेनर्स एक्ट जो है यही एप्लीकेबल है टू द स्टेट ऑफ आसाम, इन द स्टेट ऑफ आसाम एंड ऑल्सो इन इंडिया, और ये जो IMDT एक्ट जो था, ये दिस वाज अगेंस्ट आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 14 के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 14 है, उसके अगेंस्ट में था। आर्टिकल 14 क्या बोलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? राइट टू इक्वलिटी। हाँ नहीं, राइट टू इक्वलिटी में उसको क्लासिफाई किया गया है, राइट टू इक्वलिटी में उसको क्लासिफाई किया गया है, नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक। आर्टिकल 14 जो है, आर्टिकल 14 से इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये दो चीजें बताती है आर्टिकल 14, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी।
I'll read how it looks. One second. I'll do Article 14. So that is Article 16, right to like equal status and opportunity. हाँ नहीं इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी वो अलग है ना। अच्छा देखो आर्टिकल 14 says equality before law, the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protections of the laws within the territory of India. Sorry, हाँ तो ये आर्टिकल 14 है। Yes, आर्टिकल sir. 14 says that the state shall not deny any person, किसी भी पर्सन को मना नहीं करेगा स्टेट इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडियन टेरिटरी में सभी लोग जो हैं कानून के सामने लॉ के सामने एवरीवन इज इक्वल एंड एवरीवन विल बी प्रोटेक्टेड। इक्वल प्रोटेक्शन शैल बी प्रोवाइडेड टू एवरीवन। ओके सो अगर हम यहाँ पर आईएमडीटी एक्ट के तहत लाते हैं, आईएमडीटी एक्ट इम्प्लीमेंट करते हैं, तो दिस वाज गोइंग अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 14। इक्वालिटी जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं मिल रही थी वहां पर एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया नहीं मिल रहा था। एक तो हम फॉरेनर्स एक्ट से डील कर रहे थे और एक आईएमडीटी एक्ट से डील कर रहे थे। तो एक ही टेरिटरी में, एक ही इंडियन टेरिटरी में दो लॉ कैसे हो सकता है सेम चीजों के लिए, सेम क्राइम के लिए या सेम प्रोविजंस के लिए दो लॉ अलग अलग क्यों हो सकते हैं एक ही टेरिटरी में, एक ही कंट्री में। तो उसके लिए क्या है, ये दोनों को सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड इट इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड फॉरेनर्स एक्ट जो है अभी ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई होता है। So this was against going against Article 14. So now Foreigners Act applies all over India. समझ में आई बातें? थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है क्या ये? सिटीजनशिप कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में आया? सारी बातें समझ में आई? सभी कुछ समझ में आया? कोई क्वेश्चन है बताओ। हमारा सिटीजनशिप जो है यहाँ पर सारे प्रोविजंस वी हैव डिस्कस्ड ऑल द प्रोविजंस ऑफ द सिटीजनशिप। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रेज योर क्वेश्चन एंड इसके अगेंस्ट में आपको ये मिलेगा प्रॉपर पीडीएफ भी मिल जाएगा। पीडीएफ सर्टेनली थोड़ा ज़्यादा मटेरियल होगा, पीडीएफ में पढ़ना ये पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में एक लिया था इन द ईयर 2019 में सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली डाला गया था नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एनआरसी कंडक्ट करने के इसमें एंड वो डेट जो था वो डेट कंसीडर कट ऑफ डेट कंसीडर करने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 1971 Supreme Court had already said that March 24, 1971 is a valid date, is a cut-off date to declare anyone illegal migrant. इसके बाद जो आया they are illegal migrant. यहाँ पर एंसेस्ट्रल लिंक भी दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि PIOs पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन होनी चाहिए, इन एंसेस्ट्रल लिंक होनी चाहिए। तो इसी को कंसीडर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने री-इन्फोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट कंडक्ट एनआरसी इन द स्टेट ऑफ आसाम। आसाम में एनआरसी कंडक्ट करो। हमारे गृह मंत्री उठे और बोले कि भाई पूरे इंडिया में एनआरसी कंडक्ट होगा। भी स्पोक इन द पार्लियामेंट इटसेल्फ, पूरे इंडिया में हम कंसीडर करेंगे एनआरसी, व्हाई इन आसाम? हम आसाम में क्यों करेंगे एनआरसी, पूरे इंडिया में करेंगे। ठीक है, तो पूरे इंडिया में एनआरसी कंडक्ट किया जाएगा। अब इसके अगेंस्ट में जो है पूरे चल रहे हैं प्रोटेस्ट, अभी भी चल रहा है, अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है उसके अगेंस्ट में। कोई क्वेश्चन? एनीवन क्वेश्चन?
किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई कुछ बोलता नहीं है। समझ में आया कि नहीं सबको? सर अगर इलीगल माइग्रेंट मतलब डिक्लेयर किया जाए तो फिर उसके बाद हम उनको कहाँ पे डिपोर्ट करेंगे फिर? हाँ, गुड क्वेश्चन। इलीगल माइग्रेंट जो डिक्लेयर, हम उनको कंसिडर कर लेते हैं इलीगल माइग्रेंट हैं, तो इलीगल माइग्रेंट कंसिडर करके हम एक कैंप बनाते हैं। जैसे स्टेट ऑफ आसाम में ही कुछ कैंप्स बने हुए हैं, कुछ एरिया बने हुए हैं, और चूंकि उनका अपना कोई घर नहीं होता है, वो इलीगल माइग्रेशन करके आते हैं, तो गवर्नमेंट जो है इन कैंपों में शेड के जैसा, घर के जैसा बना करके, शेड घर के जैसा बना करके उसमें उनको सबको वहां पर रखती है। डिटेंशन कैंप जिसको हम बोलते हैं, डिटेंशन कैंप बोलते हैं। और ये डिटेंशन कैंप जो है ये अलग अलग स्टेट्स में है। मतलब ज्यादातर जो स्टेट जो है नियर बाय बांग्लादेश है, वैसे स्टेट्स में है ये डिटेंशन कैंप। ठीक है, यस सर। तो उनको उनको इसी डिटेंशन कैंप में रखा जाता है। और कुछ लोग अगर जिनका मतलब ये फॉरेनर्स एक्ट जो होते हैं और फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल बैठाया जाता है, तो ट्राइब्यूनल जिसको कंसिडर कर देते हैं कि यू आर इलीगल, फिर उनको सोचा जाता है कि भाई इनको किस तरह से दूसरे कंट्रीज में डिपोर्ट किया जाए। ठीक है, तो उनको रहने के लिए उनको मतलब नॉर्मल सिटीजन से बाहर ही रखते हैं उनको, इंडिया में मतलब पॉपुलेशन में उनको इंक्लूड होने नहीं देते। So this was the issue regarding Indian citizenship. So if you do not have any questions, तो मैं आज का क्लास यही फिनिश करूंगा। And the very next day we will be starting the fundamental rights. आज मैं fundamental rights इसलिए शुरू नहीं करूंगा because fundamental right is a separate topic and that requires you can say continuity also. तो वो मैं जो है मैं सोच रहा हूँ लेटर स्टार्ट करूँ। अभी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन रेज अ। So this was article 5 to 11, आर्टिकल 5 to 11। तो कोई इशू अभी तक समझ में नहीं आया ना? कोई इशू, सारे इशूज क्लियर है? अभी हम एक चीज देखते हैं सर हाँ, यस यस। सर ये लोग जो डिपोर्ट होते हैं तो समझ लीजिए कि कोई बांग्लादेश से एक इलीगल इमिग्रेंट है और फिर पता चला है कि वो इलीगल इमिग्रेंट है, तो वो उसे वापस बांग्लादेश में नहीं भेज सकते हैं क्या? भेज सकते हैं ना, क्यों नहीं भेज सकते हैं? भेज सकते हैं, तो डिपेंड कर। डिटेंशन कैंप फिर हाँ, वो क्या है? नहीं, डिटेंशन कैंप में हम वहां रखते इसलिए है कि कभी कभी क्या है कि जो उनके ओरिजिन कंट्री है वो भी उनको रिकॉग्नाइज करने से मना कर देते हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश, ओके। बहुत सारे बांग्लादेशी इंडिया आए और उनको हमने डिटेक्ट कर लिया और हम बांग्लादेश को फोन किए कि भाई तुम्हारे इतने लोग हमारे इंडिया में आ गए हैं। ओके, एज एन इलीगल यू कैन से और इलीगल माइग्रेंट्स जो है वो इंडिया में आ गए। बांग्लादेश से नहीं, हमारा कोई आदमी नहीं गया, हमारे सारे आदमी इधर ही हैं एंड दे आर नॉट आवर सिटीजन। बांग्लादेश इफ रिफ्यूजेस टू रिकॉग्नाइज, तो हम उनको फांसी पे नहीं चढ़ाएंगे ना, हैंग नहीं करेंगे, तो उनको कहीं ना कहीं जगह देना पड़ेगा। तो हम डिटेंशन कैंप देते हैं कि आप वहाँ रहिए। एंड डिटेंशन कैंप में चूंकि देखो वैसे लोगों को कोई काम भी नहीं देगा। if अगर कोई किसी को समझ में आ गया, और खासकर स्टेट ऑफ आसाम, आसाम में अगर किसी को पता चल गया कि ये इलीगल माइग्रेंट है, तो वो उससे झगड़ा भी करेगा और उसको कोई काम भी नहीं देगा, बिकॉज ही इज एन इलीगल माइग्रेंट। अगर कुछ इशू होता है, कोई चोरी होता है, तो भाई ही विल नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, नॉट रिकॉग्नाइज एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उनको कोई वर्क भी नहीं देता है। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? उनको रहने का, खाने का, सारी व्यवस्था जो है गवर्नमेंट करती है। सारा जितनी भी व्यवस्था है सारी गवर्नमेंट की व्यवस्था पे वो रहते हैं। ठीक है, तो स्टिल अभी भी गवर्नमेंट करती है। इन द स्टेट ऑफ आसाम में भी बहुत सारे डिटेंशन कैंप है, मेघालय में है,
मिजोरम में है, त्रिपुरा में है, ठीक है, इन सारे स्टेट्स में डिटेंशन कैंप हैं ऑलरेडी, जहां पर बहुत सारी माइग्रेंट्स, इलीगल माइग्रेंट्स को रखा गया। नेक्स्ट इशू है, एक है एनआरआई। एनआरआई क्या होता है? नॉन रेसिडेंट्स इंडियंस, और एनआरआई का फुल फॉर्म वही होता है ना, नॉन रेसिडेंट इंडियन। फॉर एग्जाम्पल, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। Okay, I'm just kidding. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज नॉट एनआरआई। एनआरआई वो होते हैं जो 181 डेज आउट ऑफ इंडिया होते हैं। दे आर इंडियन सिटीजन्स, दे आर एनआरआईज, दे आर इंडियन सिटीजन, they are Indian citizen and they stay out of India for 181 days or more than 181 days. तो इसका मतलब हुआ कि 6 months they stay in India, 181 days तो वही होगा, 6 months they stay in India and 6 months they stay out of India. तो ऐसे लोगों को हम एनआरआई कंसिडर करते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, ठीक है। एक बेस्ट एग्जांपल मैं बता देता हूं, हमारे नोबेल प्राइज विनर जो हैं अमर्त्य सेन, ये इंडियन है, ही इज होल्डिंग इंडियन सिटीजनशिप बट ही इज स्टेइंग इन इंग्लैंड, लंदन, ठीक है। तो ही कम्स टू इंडिया रेयरली फॉर 2-3 months, स्टेज इन इंडिया, आते जाते रहते हैं, तो हम उनको एनआरआई कंसिडर करते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन कंसिडर करते हैं। ब्रिटिश ने इनको सिटीजनशिप ऑफर किया था, बट इंग्लैंड ने सिटीजनशिप ऑफर किया था ब्रिटेन में, ही रिजेक्टेड, बोले कि नहीं, अब मैं इंडियन सिटीजनशिप नहीं लूंगा। एंड सिंस लास्ट 50 years he is residing in Britain, बट उन्होंने ब्रिटेन का सिटीजनशिप नहीं लिया है, स्टिल होल्डिंग इंडियन सिटीजनशिप, और वो हमारे लिए एनआरआई है, नॉन रेसिडेंट इंडियन है। तो इनके जितने भी इनकम होंगे, ये जितने भी इनकम कर रहे हैं, ये जितने भी इनकम कर रहे हैं, ये इनकम जो है वो फॉरेन कंट्री, जिस कंट्री में वो रहते हैं उस कंट्री को वो इनकम प्रोवाइड कर रहे हैं। उस कंट्री जो टैक्स है, इनकम टैक्स जो है, इनकम से जो टैक्स आता है, इनकम से जो टैक्स आता है, ये जिस कंट्री में रहते हैं उसी कंट्री को प्रोवाइड होता है आउटसाइड। तो इंडिया को टैक्स बेनिफिट होता ही नहीं इसका, ठीक है। तो ये हो गए नॉन रेसिडेंट इंडियंस। दूसरे एक होते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस, इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिसको हम PIOs भी बोलते हैं, PIOs, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। हु आर दे? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो जिनके एंसेस्टर्स, फादर्स, फोरफादर्स, ग्रैंड फोरफादर्स, जो एंसेस्टर्स दे आर इंडियंस, एंसेस्टर्स वेर इंडियन वंस, कभी भी अंग्रेजों के जमाने के जेलर होंगे इंडिया में, तो एंशियंट्स कभी भी बहुत पहले से जो है इंडियन होंगे, और इन एंसेस्टर्स के पास जो है इंडियन पासपोर्ट होगा, इन एंसेस्टर्स के पास इंडियन पासपोर्ट होगा। बट इनके बच्चे अभी जो हैं, अभी जिस कंट्री में ये चले गए, ये इंडिया से चले गए दूसरे कंट्रीज में, और वहां पर रहे, उनके सन, डॉटर, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर जो भी हुए, तो इनके पास जो है अभी जो सिटीजनशिप होगा वो उस कंट्री का सिटीजनशिप होगा, उनके पास इंडियन सिटीजनशिप नहीं होगा। तो ये एंसेस्टर्स इंडियन थे, लेकिन उनके बच्चे जो हैं इंडियंस नहीं है, बट ये इनका हम रिलेशंस मानते हैं, एक सोचते हैं कि वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ही है, बट दे आर होल्डिंग इंडियन, दे आर होल्डिंग फॉरेनर्स पासपोर्ट।
So technically they are not Indian. Technically they are not Indian. Mamta is asking, can Kamala Harris be a PIO? You can consider Kamala Harris as a PIO because her father was Indian. She is staying in other country. So ancestors were Indians. And अभी जो है ये बच्चे जो हैं उनके सिटीजनशिप जो है वो फॉरेन कंट्री में, तो टेक्निकली दे आर नॉट इंडियंस. टेक्निकली ये इंडियन सिटीजन्स नहीं है, टेक्निकली नॉट इंडियन सिटीजन. नॉट इंडियन सिटीजन्स. बिकॉज देखो हमारे इंडिया में क्या है, वी डोंट प्रोवाइड डुअल सिटीजनशिप. We don't provide dual citizenship. Dual citizenship like it happens in America. अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप होता है, या फ्रांस में डुअल सिटीजनशिप होता है. हमारे पास डुअल सिटीजनशिप नहीं. डुअल सिटीजनशिप का यहाँ सेंस ये है कि if anybody acquires the citizenship of foreign country, his or her Indian citizenship will automatically get terminated. तो वो डुअल सिटीजनशिप हम होल्ड करने नहीं देते हैं. तो हमारे या तो आप हमारे इंडियन सिटीजनशिप बन के रहिए, और अगर आप किसी दूसरे कंट्री के सिटीजनशिप लेते हैं, आपका जो इंडियन सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि आप दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप ले लेंगे. ठीक है, तो वो वी डोंट प्रोवाइड डुअल सिटीजनशिप. वी हैव नो ऑप्शन ऑफ डुअल सिटीजनशिप. we consider that you should be loyal to India. Anyone you is being Indian, that person should be loyal to India. Dual loyalty की बात नहीं करते हैं. Dual loyalty cannot be there. I mean, at the same time you will be considering, no, India is a good place to stay, and at the same time you will be considering, no, America is also a good place. So you cannot have dual loyalty kind of thing. इटली में डुअल सिटीजनशिप है. इटली में तो जब सोनिया गांधी जब सिटीजनशिप, इटली की सिटीजन जब थी, इटली की सिटीजन जब सोनिया गांधी थी. यस ममता. Sir, if somebody like residing in India but having a citizenship from other state, then residing in India or having like they will be called migrant only. Like bearing a citizenship card from other state, like so from any other European or American country, but like they are residing in India, so like they will be called migrant or what? No. If they are from other country or citizens of other country, and if they are in India, it means they are in India with valid passport और वीजा. पासपोर्ट और वीजा है उनके पास, है ना. और अगर ये पासपोर्ट और वीजा अगर एक्सपायर कर जाता है, देन दे विल बिकम इलीगल. तो ये पासपोर्ट और वीजा का डेट होता है, ड्यूरेशन होता है ना, कि आपको उतना दिन ही रहना है. ठीक है, तो वो उतने दिन आकर के वहां रहेंगे, एंड इफ दे थिंक passport and visa can be taken off, date can be extended, okay, वो उनके अपने स्टेट के जो फॉरेन अफेयर्स होंगे, ऑथोराइज पर्सन होंगे, वहां से भी अथॉरिटी लेंगे, और इंडिया में उनके एम्बेसीज हैं, और इंडियन अथॉरिटी से भी परमिशन लेकर के वो इंडिया में रिसाइड करेंगे. और अगर वो जिस दिन डेट खत्म हो, दे विल बिकम इलीगल माइग्रेंट. आफ्टर द डेट फिनिशेस, दे विल बिकम इलीगल माइग्रेंट. ओके, और अगर इलीगल माइग्रेंट है तो फिर इनके ऊपर भी वही चार्ज लगाया जाएगा, फॉरेनर्स एक्ट का जो है चार्ज लगा के कंसिडर किया जाएगा इनको. यस यस ममता. Yes sir, got the point. Okay, so
सोनिया गांधी जो थी वो भाई इटली की सिटीजन थी, और उन्होंने राजीव गांधी के साथ विवाह होने के बाद, when she got married with Rajiv Gandhi, she came to India, and when she came to India, and for the time being she retained Italy's citizenship of Italy. For the time being she retained that, and after few days she applied for Indian citizenship. When she applied for Indian citizenship, तो इशू ये था कि वो इटली की सिटीजन ऑलरेडी थी और इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया उन्होंने। इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया, तो उनके हमारे इंडिया के प्रोविजंस के अनुसार, इफ यू गेट इंडियन सिटीजनशिप, your Italian citizenship of other country will automatically get lost. So as soon as she got Indian citizenship, the document, her Italian citizenship gets automatically lost. So now she is the citizen of India, full-fledged citizen of India, no doubt in this. Okay. So one is person of Indian origin, ये होते हैं person of Indian origin. एक और होते हैं जिनको हम बोलते हैं Indian overseas citizens of India. Overseas citizens of India. OCI, Overseas Citizens of India, इनको OCIs बोला जाता है। OCIs. They are also, इनके ancestors जो थे, ये इनके ancestors Indians होंगे, मतलब बहुत और long ancestors जो हैं, they were Indians, ancestors Indian होंगे, और ancestors Indian होंगे, and उन्होंने अपनी Indian citizenship को कायम रखा है, बरकरार रखा कि हम we are Indians still residing in other country, but we are Indians, so their Indian citizenship is intact. तो उनके बच्चे जो होंगे या वो जो वैसे पर्सन जो हैं, they are overseas citizens of India, मतलब Indian citizen हैं, but they are residing in other country. They are residing in other country. अगर 6 महीने करके वो पार्ट करके रिसाइड करते हैं, then they become NRI, but वो they are completely residing in other country. They are completely residing in other country, but they are retaining Indian passport and Indian citizenship. So they are overseas citizens of India. तो हुआ ये कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट आई 2002 में, हाँ 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट जब आई, तो at that time the economic condition of India was not so good, and India had just recovered from 1991 shock from the Congress-led government also, led by Manmohan Singh, the as a finance minister, and in the year 2002 also, because economic situation was not good, because 1991 there was a crunch in American economy. There was a crunch in American economy. Then at the same time, India observed that China was growing good. China इतना अच्छा ग्रो कर रहा है, and China's economy was growing, means as a constant pace, you can say. It was not going downwards. China's economy. So India observed how Chinese are able to grow their economy, and इंडिया में जो फॉरेन डायरेक्ट दूसरे कंट्री के जो इन्वेस्टर्स थे वो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करते थे, बट दे डू इन्वेस्ट इन चाइना. वो चाइना में इन्वेस्ट करते थे, इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करते थे. इसका मतलब है जो एफडीआई थी, एफडीआई जो होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंट्री के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं या फिर बिजनेस एसोसिएट्स होते हैं, वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं. तो वो इंडिया में बहुत ही कम था, मार्जिनल रेट था, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट होता था इंडिया में. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत कम आते थे इंडिया में, और चाइना में बहुत ज्यादा आते थे. तो अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ऑब्जर्व ऑल सिनेरियो कि भाई चाइना में इतना एफडीआई इन्फ्लक्स क्यों हो रहा है, इंडिया में इतना क्यों नहीं आ रही. तो दे ऑब्जर्व दैट कि
whoever are bringing FDI in China, they are Chinese only. They are Chinese residing in other country and they are investing in China. So Chinese people are residing in America, European Union, France, Italy, Germany, everywhere, and they are investing in China. So they are bringing FDI to China, and hence China is flourishing. Its economy is growing. Then our government, led by Atal Bihari Vajpayee, what he did, he started recognizing Indians residing everywhere in the world, in different countries, and most probably जो अमीर कंट्रीज थे, लाइक रिच कंट्रीज, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, तो ऐसी जगहों में जो डेवलप कंट्रीज में जितने भी हमारे इंडियंस रहते थे उनको वो टारगेट करने लगे, खोजने लगे कि हु आर दे आवर इंडियंस, है ना। तो उनको उन्होंने सबको मतलब कॉन्सुलेट के द्वारा, कॉन्सुलेट से, एम्बेसी से जो है, एम्बेसडर के थ्रू, कॉन्सुलेटर के थ्रू जो है उन्होंने सबको न्यूज भिजवाया कि भाई यू आर इंडियन। ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया को भी न्यूज भिजवाया कि यू आर इंडियन, वी कंसीडर यू एज एन इंडियन। एनआरआईज, वी कंसीडर यू एज एन इंडियन। पीआईओस को भी उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया कि भाई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, आपके दादा दादी जो थे, आपके दादा परदादा इंडियन थे, तो आप भी इंडियन हुए ना। आप भले ही दूसरे कंट्री में रहते हो, दूसरे कंट्री का आइडेंटिटी, बट आपका खून इंडियन का है। तो उन्होंने उनको इन्वाइट किया। They invited, the government of India invited them and celebrated, means started celebrating a day that is called Pravasi Bharatiya Divas. Pravasi Bharatiya Divas. Started celebrating, this government of India started celebrating Pravasi Bharatiya Divas. अभी इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वाइटेड एवरीवन, being overseas citizenship of India, person of Indian origins, NRIs, whoever the government of India found that person is Indian or that person belongs to India, whoever the government of India found that that person is Indian or is somewhere in Indian link, anywhere अगर Indian link है कहीं भी, to bring them to India. उनको इंडिया इनवाइट किया गया। और जो ये जो ओवरसीज सिटीजन्स जो हैं वो इंडियन सिटीजन्स तो हैं, और जो ये पीआईओस जो हैं दे आर नॉट इंडियन सिटीजन्स बट देयर एंसेस्टर्स वेर इंडियन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हाट दे डिड, उनको अट्रैक्ट करने के लिए दिल्ली में ये प्रवासी भारतीय दिवस एस्टैब्लिश किया। एक दिवस मनाया। ये कब मनाया जाता है पता है? डू यू नो द डेट? प्रवासी भारतीय दिवस 9th जनवरी एवरी ईयर ये मनाया जाता है। 9th जनवरी एवरी ईयर। ये इसी डेट को क्यों मनाया जाता है, 9th जनवरी को ही क्यों? सो बिकॉज ऑन दिस डे इंडियाज लार्जेस्ट प्रवासी और द बिगेस्ट प्रवासी came back to India from South Africa, and that he was Mahatma Gandhi. महात्मा गांधी जो थे इसी दिन इंडिया वापस आए थे। ठीक है, हम साउथ अफ्रीका में रहते थे। He was practicing as a lawyer, but he heard about and on the call of Gopal Krishna Gokhale, his mentor, he came to India. On this date, he landed on India on 9th January. On 9th January 1915 को ही वो इंडिया आए थे। 9th January 1915 को। सो उसी दिन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग प्रवासी भारतीय दिवस। सबको बोले कि आप भी इंडिया आ जाओ महात्मा गांधी के जैसा।
इमोशनली अटैच करने लगे उनको, हम इंडिया आ जाओ, यू आर इंडियन, और उनको इनवाइट किया, सारी व्यवस्था रखी उनके आने का, खाने का, रहने का, घूमने का, मीटिंग अटेंड करने का, सारी व्यवस्था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने पैसे से खर्च किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग आए, 5-7 दिन 10 दिन तक रहे इंडिया में, 10 डेज तक, गवर्नमेंट के खर्चे पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खर्चे पे। गवर्नमेंट बुलाई, ठीक है, गवर्नमेंट बुलाने के बाद जो पीआईओस थे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो थे, उनको भी बोली कि हम आपको इंडियन कंसिडर करते हैं, लेकिन एक शर्त है कि आपको इंडियन हम तभी कंसिडर करेंगे, आप पीआईओ कार्ड खरीद लीजिए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का एक कार्ड जो है आप खरीद लीजिए, पीआईओ कार्ड जिसको बोलते थे, ठीक है। तो एक कार्ड बनाया, पीआईओ कार्ड, और उस समय जो था उसका दाम जो है $1000 दाम रखा, प्राइस पीआईओ कार्ड का। सो जितने भी पीआईओस थे उनको बोला गया कि जो यू जस्ट पे $1000 and you will be getting PIO card, okay, and through this PIO card you will feel connected to India, you will feel connected to India, and we will consider you as an Indian. So this PIO card is not Indian citizenship, this is just recognizing them as an Indian, not giving any identity of Indian, okay, just recognizing them, they were from wherever they are, from which country they were staying, they were belonging from, they are from there only. We invited them to India first to sell PIO card, so that if many person buys the PIO card, some revenue will get generated for India. We asked these persons who came to this Pravasi Bharatiya Divas, PBD, who came to attend this PBD, we asked these persons to invest in India. हमारे प्राइम मिनिस्टर्स जो थे उस समय के, अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने इनको बोला कि यू आर इंडियन, व्हाई आर यू कंडक्टिंग अ बिजनेस विद अदर कंट्रीज, हमारे इंडिया के साथ बिजनेस कीजिए ना, इंडिया के साथ बिजनेस कीजिए। इंडिया के साथ बिजनेस कीजिए, बट इनको इमोशनली, यस, कौन है, anyone, any question, raising any question? So they asked to deal with India, means this Pravasi, in this Pravasi Bharatiya Divas, everyone who came, government of India wanted them to invest in India, wanted them to bring foreign direct investment in India, FDI in India, but किसी ने सुना नहीं, सभी आए, खाए, छुट्टी मनाई, हॉलीडे सेलिब्रेट किया एंड वेंट बैक। और ये जो पीआईओ जो थे ना, पीआईओ कार्ड जो हम सेल कर रहे थे, ये सिर्फ 2 लोगों ने खरीदा, 2 पर्सन, सिर्फ 2 लोगों ने पीआईओ कार्ड खरीदा। बहुत ज्यादा फील कर रहे होंगे, वी आर इंडियन, हमें पीआईओ कार्ड खरीदनी चाहिए, भाई बेचारे 2 लोग नहीं खरीदा पीआईओ कार्ड। प्राइस बहुत था, $1000। सी, अगर हम अभी के रेट में लें 1000 इंटू 74, अभी जो डॉलर का रेट है वो 74 है, तो 74,000 जो था सिर्फ एक पीआईओ कार्ड का प्राइस था। कैन यू कंसिडर 74,000 इज द प्राइस ऑफ 1 PIO card? Never, means only 2% bought it, everyone rejected, mean high price, everyone rejected. Then in the next year, government of India again invited them with its own expenses, everything. भाई आप आओ, आने का खर्चा, जाने का खर्चा, खाना रहना घूमना सब हमारे खर्चे से आप आओ। We will be providing all benefit, every facilities to stay in India, to move everywhere in India. We'll provide everything. Okay, so government of India did everything, they provided everything. They came again in the next year. So this got started in the year 1998 itself. Yes, 1998. So this Pravasi Bharatiya Divas, for the first time, this was being celebrated in the year 1998. 1998 में
पहली बार सेलिब्रेट किया गया था. Then in the 1999, in the year 1999, when they came to India for second time, very few people they bought this PIO card. The government has reduced the price. Government ने price reduce करके $600 कर दिया. पहले 1000 था, $600 कर दिया government ने price reduce करके. Then in the very next year 2000 में भी और price reduce कर दिया. अभी क्या किया 4000, subsequently जो है $275. गवर्नमेंट ने प्राइस रिड्यूस करते गए. तो पहले 1998 में एक किसी ने भी इन्वेस्ट नहीं किया, 99 में भी सभी लोग आए, इन्वेस्ट नहीं किए. तो फिर गवर्नमेंट जो है वो रिव्यू की प्रोसेस को, गवर्नमेंट रिव्यू द प्रोसेस दैट व्हाई दे आर विजिटिंग इंडिया, दे आर कमिंग टू इंडिया, बट व्हाई दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन इंडिया, व्हाट आर द रीजंस. उन्होंने बातें करना शुरू किया. उसी एनआरआईज के मतलब जो पीआईओज थे, ओसीआईज थे, एनआरआईज थे, उनसे बातें करना शुरू किया. गवर्नमेंट ने बातें शुरू की तो उन्होंने बताया कि आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं, एफडीआई के रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो बहुत ही टफ हैं. एफडीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ही टफ हैं. तो आप पहले उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को ईज कीजिए, कम कीजिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस को कम कीजिए, तभी हम इन्वेस्ट कर पाएंगे. So in the year 2000, Government of India amended FDI some provisions, ease of doing business, has brought many of the provisions for ease of doing business. Business करने में जैसे आसानी हो वैसे practices को India incorporate की. Few people, few investors came to India in the year 2000. ठीक है, few FDI came to India. Few FDI came to India in the year 2000. और धीरे धीरे क्या हुआ, ये और इंक्रीज होता गया. हमने ये नॉर्म्स जो थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस, एफडीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस नॉर्म्स जो थे, हम धीरे धीरे और ईज करते गए. वी स्टार्टेड मेकिंग इट मोर इजी फॉर इन्वेस्टर्स, more convenient for investors friendly, ease of doing business, and many investment came to India. And today India is the world's largest country, means world's biggest FDI receiving country, FDI inflow country is India. तो हमारे प्राइम मिनिस्टर का एनआरआई होने का मतलब यही था. ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर 6 महीने जो बाहर रहते थे आउट ऑफ इंडिया, तो उसका मतलब यही हुआ कि वो वहां जा करके इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते थे, बातें करते थे और उनको इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए बोलते थे. ठीक है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स इंडिया आए, एफडीआई बहुत सारे इंडिया आई, एंड टुडे इंडिया इज हैविंग द लार्जेस्ट एफडीआई फ्लो इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट एफडीआई फ्लो इन द वर्ल्ड. ठीक है, so we do not provide dual citizenship. First thing, this PIO card is not a dual citizenship. This PIO card is not a dual citizenship. This PIO card is just for recognizing as Indian to make them invest in India. Okay, so इसके ऊपर बहुत सारे अभी updates आए हैं. So we will talk about these updates of PIOs और PIOs और OCIs. PIOs and OCIs के ऊपर अभी कुछ updates आए हैं. So we'll talk about these updates in the next class because you are not going to receive now. अभी तक जो basic points थे हमने वो discuss किए, और ये जो हम next class में करेंगे इसके बारे में, that will be a few sort of current issues. We will be discussing that current issues also, and then we will start fundamental rights. Most interesting chapter in Constitution of India, fundamental rights. बहुत मजा आएगा पढ़ने, है ना? So if you have any questions, you can raise your questions. World's largest FDI received in China and then USA. Okay, not in India, but it was the news of yes 2-3 days back also. Please say from your side. Okay, so did you get the point? So whatever, not if even if India is not the biggest FDI inflow country, but still now the FDI has increased. India's FDI investment, foreign direct investment has increased
and many foreigners are investing in India. और अभी चाइना का जो रेपुटेशन है वैसे भी खराब हो गया है, तो मोर who were investing in China, they are moving either in India और फिर या तो वो इंडिया आ रहे हैं या फिर थाईलैंड जाकर के, इंडोनेशिया और थाईलैंड जाकर के वहां पर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं. So they are anyway leaving China. The China's revenue is significantly declining, but not that in that amount. Despite having corona infected and father of corona, China is still growing in a very good pace, and we are the sufferers. Okay. So every year on the 9th of January we celebrate Pravasi Bharatiya Divas. Okay. So there is no questions, I think, from your side, and if you have any questions you can raise. कोई चीज अगर समझ में नहीं आया हो तो आप बताएं, डायरेक्टली हमें बताएं, मुझे बताएं, और मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा. और अगर समझ में आ गया है देन वेल एंड गुड. सो कुछ मेंस के क्वेश्चंस मैं दूंगा आज, जो क्योंकि मैंने कल इसके पहले क्लासेस में क्वेश्चंस नहीं दिए थे. सो आई विल बी गिविंग 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस. यू हैव टू राइट, एंड everyone you need to write, because बस 2 ही 3 लोग लिखते हैं, 4 लोग लिखते हैं. So at least 3 descriptive questions you will get from this chapter. And MCQs तो होंगे. So this is the time you practice your descriptive questions, because I am here to evaluate your answers. Okay, I'll give all your points, and I do have the experience in this field also. How to write answers, how to evaluate it, and I have evaluated for many persons who are already selected. Many persons are selected right now. So you just write, practice it. I'll point out the authentic ideas, authentic ways to write your answers. I'll not take you anywhere else. I'll point out the authentic means how to write perfectly and how exactly you're going to fetch good marks. I'll mold you in that direction. So now you have the time. I'm here to evaluate your answers. Please write your answers and publish it. Some of the answers have been published in the group. I'll be reviewing it today. Okay. And thank you then. If you do not have any questions, and if you have any questions, please raise. No question, sir. Okay, very good. Or no? All clear. All clear? Good, very good. Virendra? Virendra? Okay. Good. Diksha, no question. Very good. Okay, so then I'll finish it here itself. If you do not have any questions, and if you get any questions, please type your questions, text your questions in the group itself, and you will be getting the PDF notes of this class, and this video will also get uploaded in the YouTube, and the previous ones will also get uploaded today itself. So, okay then, bye. If you do not have any questions, take care. Have a good day. Bye. Okay, sir. Thank you for the lecture.